سی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، پروگرام اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ 2 پروگراموں میں آپ کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی کاوشوں، سرگرمیوں، کتابوں کے ریویوز اور شخصیت کا جائزہ دکھایا تھا، لیکن ہمارا تازہ پروگرام سابقہ 2 پروگراموں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ جی ہاں، آج کا ایپیسوڈ حیدرآباد میں منعقدہ کتاب میلہ اور اس میلے میں منعقد ہوئے ادبی و ثقافتی پروگرام پر مشتمل ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں 19ویں قومی اردو کتاب میلے کا افتتاح 12 دسمبر کو ہوا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے اشتراک سے یہ میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میلے کا افتتاح تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے کیا۔ میلہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اردو کی شمع روشن ہوئی اور پروانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ علم و ادب کا گہوارہ شہر حیدرآباد اردو کا استعارہ بنا ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کے نام سے موسوم قلی قطب شاہ اسٹیڈیم اردو کے پروانوں کا مرکز ہے۔ اسٹیڈیم میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے اشتراک سے 19واں قومی اردو کتاب میلے کا افتتاح تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے کیا۔ اس موقع پر منعقدہ افتتاحی تقریب میں کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے ملک بھر میں قومی کتاب میلے کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے لوگوں کو واقف کرایا۔ افتتاحی اجلاس اور اس افتتاحی اجلاس میں شہنشی پہ جو تشریف رکھتے ہیں لوگ، ان کی تو اپنی اہمیت ہے ہی، لیکن جو ادھر جو لوگ تشریف رکھتے ہیں وہ بھی بڑی شخصیات میں ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ اور میں اس کو اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ ترازو کا پلڑا سامنے رکھیے تو جو پلڑا جھکے گا وہی، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب وزن بھی کریں گے تو آپ ہی کا پلہ بھاری ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے کتاب میلے کے انعقاد پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو مبارکباد دی اور کونسل کی جانب سے اردو کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں اردو کے ادبا اور شعراء کے لیے وظیفہ اور ہیلتھ انشورنس کی اسکیم شروع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت جلد حیدرآباد میں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد کا بھی وعدہ کیا۔ میں خاص طور سے قومی کونسل برائے فروغ اردو کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ یہاں پر کئی کتابیں جو سائنس کے تعلق سے لکھی گئی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ انگریزی میں ہونے سے اور ملازمتیں جتنے ملتے ہیں
जहाँ जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती उन्हें मुलाजिमत मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम दूसरी ज़बानों को भी सीखना चाहिए, तेलुगु ज़बान भी सीखना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम पर फिर एक बार मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं खुद भी यहाँ आकर 1-2-3 घंटे गुजारूंगा। और ये टाइम जो 8 बजे रखा गया, बहुत से लोग हमारे भाई अपने अपने दुकानें कारोबारों में काम करते हैं, उसे मैं अभी कमिश्नर को बोलते हुए 10 बजे तक का टाइम उसे 2 घंटे इजाफा कर दिया जाएगा, ताकि लोग अपने अपने काम से वापस होते हुए ये किताबें खरीद सकेंगे। हम तेलंगाना के अंदर उर्दू के बारे में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ज़रूर बुलाएंगे, मुनासिब टाइम देकर आपसे भी मशवरा किया जाएगा कौन सा टाइम मुनासिब रहेगा, और पूरे इंतजाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तरीके से किया जाएगा। काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि उर्दू के आम कारी तक मेयारी अदबी किताबें पहुंचाना इन मेलों का बुनियादी मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि काउंसिल की ये कोशिश आइंदा भी जारी रहेगी। हमारे आने वाले दिन बहुत ज्यादा रोशन हैं। कलम के इन मजदूरों को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। कलम के इन मजदूरों की आप वाहवाही कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा साहित्य का निर्माण हो सके। हम अदब को साहित्य कहते हैं, और साहित्य का मतलब जिसमें हित होता है, जिसमें भलाई होती है। अदब और भलाई जब दो चीजें मिलती है तो गंगा जमुना का मैदान तैयार होता है, जरखेज धरती तैयार होती है। ये काम हमारी इस काउंसिल ने कर दिखाया, और आगे भी करके बतलाएंगे। आप देखेंगे कि हर साल मेला लगेगा। एक लंबे अरसे के बाद शहर हैदराबाद में उर्दू किताब मेले के इनेकाद पर कारीन में काफी जोशो खरोश है। इन्हें उम्मीद है कि ये मेला तिश्ना लब कारीन की तिश्नगी को बुझाने में कामयाब होगा। 5 वर्षों के तवील अरसे के बाद NCPL की ये नुमाइश शहर हैदराबाद पहुंची है, और आज इसका इफ्तिताई दिन है, तो ये ज़रूरी था कि हम यहाँ पर आएँ और देखें। ख़ास तौर पर अभी जो मैंने जो डिक्शनरी के हवाले से जिस तरीके की रियायत यहाँ पर दी गई है, तो मैं बोला कि पहली फ़ुर्सत में ये ले लेना, ऐसा ना हो कि बहुत सारे उर्दू के शहर में ये उर्दू की डिक्शनरी आई है, और फिर अगर डिस्काउंट की बात है तो उससे पहले इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो मैं पहले ये ज़रूरी समझा कि इस स्टॉल पर पहुँचूँ और अपने लिए जो रियायती शरह पे डिक्शनरी मिल रही है वो लूँ। और बहैसियत मजमई एक खुशी का माहौल दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि हर रोज़ यहाँ पर जो है सो बहुत सारी किताबें और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदबी प्रोग्राम भी हमें देखने को मिलेंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे, मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सका था, क्योंकि मैं उर्दू का प्रेमी हूँ। आज यहाँ पर इस उर्दू मेले में आने का इत्तेफाक हुआ, और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर शुक्र साहब और इर्तिज़ा करीम साहब जो NCPL से आए हैं, और दीगर हजरात ने बड़ी शानदार तरीके से इसका इफ्तिताह किया। और मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले जितने भी मेले लगे हैं 12 के बाद से, अब का जो मेला है ज़्यादा किताबें उर्दू की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे उर्दू पढ़ने वालों से, ख़ारिज से, कि उर्दू की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसका इस्तेफ़ादा करें। इस नुमाइश से, इस किताबों के मेले से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें, और जो है नौजवान बच्चे और जो है छोटे बच्चे जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनको भी लाकर यहाँ पे किताबों का जो है शऊर बेदार किया जाए, और लोगों में जो है इसके ताल्लुक़ से अवेयरनेस पैदा किया जाए कि उर्दू के ताल्लुक़ से लोग काफ़ी जस्तजू करें और उर्दू की तरक्की के लिए काम करें। हम समझते हैं कि इस किस्म के मेले बार बार होनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे शहर में जो किताबें हैं, उर्दू की दुकानें हैं, उनमें पूरी किताबें या फिर हर मौजू की किताबें दस्तयाब नहीं होती हैं। इस किस्म के मेले से हम अपनी पसंद के जो हैदराबाद में अदम दस्तयाब हैं वो किताबें भी हम जो है इस किताब मेले से ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो पब्लिशर्स की जो किताबें हैं, नायाब किताबें हैं, जिन तक जो है आम ख़ारी की पहुँच नहीं है, वो किताबें भी यहाँ दस्तयाब होती हैं, और पब्लिशर का भी फ़ायदा होता है कि उनकी किताबों की नक्काशी भी होती है, और पढ़ने वाले ख़ारी का भी फ़ायदा होता है कि वो जो किताब चाहता है इस मेले में अगर आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी किताबें वो मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की किताब मेले से
उर्दू के बारे में लोगों का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है और डिस्काउंट के साथ किताबें मिलती हैं इस किस्म के मेले में। तलबा हैं, फिर प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर साहिबान हैं या आम जो ख़ारी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है। मैं तमाम उर्दूदा हज़रात से, तमाम तलबा और तालिबात से भी ये ख्वाहिश करूँगा कि इस उर्दू किताब मेले का ज़रूर एक मरतबा मुशाहिदा करें और अपनी पसंद की किताबें जो है ख़रीद कर अपने घर में रखें और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए जो है अपना किरदार अदा करें। जो उर्दू के लिए फ़रोग़ दिया जा रहा है, बहुत हम इसके शुक्रगुज़ार हैं। तो इतनी मेहनत से दूर दूर से लोग आए हैं, स्टॉल्स लगी हुई हैं किताबों की। हम समझते हैं कि आवाम को किताबों से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं किताबें बहुत अच्छी हमारी दोस्त है। टीवी पे नॉलेज लेना अलग बात है, कंप्यूटर इंटरनेट अलग बात है, लेकिन किताबों से जो हम पढ़ते हैं, दिमाग से जो जहन में बैठती है बातें, यहाँ पे हर वो किस्म की किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिताही तकरीब में ऑक्सफोर्ड प्रेस की इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद इर्तिज़ा करीम ने ऐलान किया कि हैदराबाद में मेले के इनेकाद तक इस डिक्शनरी पर 40% रियायत दी जाएगी। बीस दिसंबर तक चलने वाले इस किताब मेले में अदबी और सकाफती प्रोग्राम के साथ साथ किताबों पर तबसरा, बच्चों के लिए क्विज, अदीबों से मुलाकात, अदबी महफिल, मुशायरा, बैतबाजी और दीगर प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं जो उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ रखने वालों की मुकम्मल अक्कासी कर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने कहा कि किताब मेले का मकसद क़ारीन और नाशरीन को एक प्लेटफार्म फराहम कराना है ताकि अदब के चाहने वालों के ज़ौक़ व शौक़ की तस्कीन हो, उदबा के पजीराई हो और नाशरीन की कमाई भी हो। मसला ये है कौमी कौंसिल का कि हम ये किताबों का मेला क्यों मुनक़िद करते हैं और किताबों का मेला क्यों लगाते हैं। ये बहुत बुनियादी सवाल है, चूँकि इसमें लाखों के अखराजात होते हैं, मैन पावर, मेहनत होती है। एक एक प्रोग्राम पे 2-2, 3-3 महीने हम लगाते हैं, तब जाकर के कोई प्रोग्राम हम कर लेते हैं। लेकिन ये मकसद क्या है आखिर किताब के मेले के इनेकाद का? बहुत सीधी सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू का कारी बैक वक्त बॉम्बे और हैदराबाद और बिहार और लखनऊ और हिंदुस्तान के तमाम मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू के पब्लिशर्स तक नहीं पहुंच सकता, उसको दुश्वारी हो सकती है, होती है। लेकिन जब हम 136 और 37 पब्लिशर्स को एक छत के नीचे जमा कर देते हैं तो उर्दू के जो कारी हैं, उर्दू के जो ख़रीदार हैं, उर्दू के जो शायकीन हैं, उनके लिए आसानी फराहम होती है कि आप अपनी पसंद की किताबें अपने मौज़ूआत के हवाले से यहाँ ख़रीदें। हम आपकी खिदमत भी करते हैं और साथ में उन पब्लिशर्स की भी हौसला अफजाई होती है, उनको भी ये मौका देते हैं कि आप तशरीफ़ लाइए और अपनी अच्छी किताबें, अपनी बेहतर किताबें उर्दू के क़ारीन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हमें बड़ी खुशी है और बहुत तमानियत का एहसास होता है कि हम इसमें बहुत कामयाब हो रहे हैं। पिछले ही दिनों हमने दिल्ली में किताब मेला लगाया था जामिया मिलिया इस्लामिया में, उसमें भी तकरीबन जो बिजनेस हुआ है उर्दू किताबों के ताल्लुक़ से वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का बिजनेस हुआ है। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि हैदराबाद जो शहर उर्दू है, जहाँ से उर्दू के मंबे निकलते हैं और फूटते हैं, ये हैदराबाद वो जगह है जहाँ का कुली कुतुब शाह पहला दीवान शायर है। अब इसी तरह से यहाँ की पहली जो शायरा हैं जिनका दीवान मुकम्मल दीवान है वो लुत्फुन्निसा बेगम साहबा हैं, जिनका पहला दीवान शायरी का है। तो इस ऐसे शहर में जिसको हम शहर उर्दू कह सकते हैं, अगर ऐसे शहर में हमने उर्दू के मेले का इनेकाद किया है तो हमें यकीन है कि हम 5 करोड़ तक का भी बिजनेस कर सकते हैं और हमारे पब्लिशर को इससे हौसला अफजाई हो सकती है। ये ख़रीदो फ़रोख्त का मसला कोई बहुत
ایسا نہیں ہے کہ بہت اس پر بہت خوش ہوا جائے یا اس کو بہت بار بار اس کا ذکر کیا جائے، چونکہ پیسے تو پیسے ہوتے ہی ہیں، لیکن اصل جو بات سامنے آتی ہے اس سے یہ کہ ہم اس چیز کو رد کر رہے ہیں، ہم اس تصور کو رد کر رہے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان سمٹ رہی ہے، اردو کا ادب پڑھا نہیں جا رہا ہے، اردو کی کتابیں بک نہیں رہی ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمارے میلے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے، یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا، اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ، قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا، قیمت صرف 15 روپے۔ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان، ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام۔ اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی مطبوعات بالکل مفت۔ لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in۔ قومی اردو کتاب میلے میں اردو کا ذوق رکھنے والوں کے لیے مختلف ادبی، ثقافتی اور موسیقی کے پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ شام غزل میں فنکاروں نے استاد شورا کے کلام پیش کیے، جسبیر کور، سلطان مرزا اور خواہ اطہر نے سما باندھا۔ لوگوں نے کچھ تم نے بدنام کیا، کچھ تم نے بدنام کیا، کچھ آگ لگائے لوگوں نے۔ ہم ہی نے ان کو بام پہ لایا،
ही ने उनको बाम पे लाया और खुद ही महरूम रहे। पर्दा हमारे नाम से उठा, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख मिलाई लोगों ने, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख मिलाई लोगों ने। हैदराबाद किताब मेले के इनेकाद के मौके पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिजा करीम से खास बातचीत की। नाज़रीन, हम हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में हैं और यहाँ मुनाकिद हो रहा है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का किताब मेला, और मेरे साथ मौजूद हैं कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद अली इर्तिजा करीम साहब। सर, 5 साल के तवील अरसे के बाद हैदराबाद में फिर एक बार कौमी कौंसिल का उर्दू जो है मेला, किताब मेला मुनाकिद हो रहा है। देखिए, ये आपको इल्म है कि हम पूरे हिंदुस्तान में किताबों का मेला लगाते हैं और 19वां जो है किताबी मेला है जो हैदराबाद के इस तारीख़ी मकाम पे हम लोग कर रहे हैं। अगर किताबों के मेले के साथ हम सकाफ़ती प्रोग्राम रख लेते हैं, मुशायरा है, बैतबाजी है, ड्रामे हैं, किस तरह के और, तो उसमें और दिलचस्पी बढ़ जाती है शायकीन की। ये इंसान सिर्फ़ अगर काम करता रहे तो बात नहीं बनती। अगर काम के साथ साथ तफरीह भी थोड़ी हो जाती है तो फिर वो उसके काम में एक तरह का हुस्न पैदा हो जाता है। इस एतबार से आप देखेंगे तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये 19वां किताबी मेला जो हैदराबाद में हो रहा है, मुझे यकीन है कि ये मेला उसी तरह कामयाब होगा जैसे हमेशा कामयाब होता रहा है। सर, कौमी कौंसिल का भी स्टॉल इस मेले में लगा हुआ है, तो आपके पास किस किस्म की किताबें मौजूद हैं? देखिए, कौमी कौंसिल को ये इफ्तिखार हासिल है कि उसके पास सिर्फ़ अदब के हवाले से किताबें नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर कौमी कौंसिल ने किताबें छापी हैं। हर तरह की किताबें हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप अगर हमारे स्टॉल पे जाएंगे तो इसके अलावा जो 127, 126 हमारे जो पब्लिशर्स यहाँ आए हैं, बुक सेलर्स आए हैं, आप उनके स्टॉल को अगर देखेंगे तो वहाँ भी हर मौजू पर आपको किताब मिल जाती है। जाहिर है 127 पब्लिशर्स तक पहुँचना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि कहाँ कहाँ जाएगा वो। और यहाँ आलम यह है कि एक ही शहर में, एक ही मकाम पर, एक ही मैदान में 127 पब्लिशर हैं। आप अपनी पसंद से अपनी किताबें उन स्टॉल से ख़रीदिए। रियायत भी अच्छी खासी मिल जाती है मेले के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि क़ारीन को और किताबों को करीब लाने में ये उर्दू किताब मेले जो है बहुत माविन साबित होते हैं। मोबाइल से भी हमारी किताबें जाती हैं और वो हमारी गाड़ी जाती है और वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ कस्बों में, और वहाँ किताबों के बेचने का काम, किताबों के ख़रीदो फ़रोख्त का काम वहाँ भी करती है। इससे अंदाज़ा होता है कि लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू की किताबों से उनको दिलचस्पी है। ये हैदराबाद में जो किताब मेला मुनाकिद हो रहा है, इससे क्या उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि ये इलाका वो है जो उर्दू का इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ यहीं से वली ने उर्दू शायरी की शुरुआत की है, उर्दू गज़ल की शुरुआत की है। तो और ये वो जगह है जहाँ एक से एक अदीब और शायर पैदा हुए हैं और यहाँ अभी भी अदब से लोगों की दिलचस्पी बाकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो उर्दू आबादी है, यहाँ जो उर्दू का शौक़ और ज़ौक़ है, तो इसके हवाले से ये मेला हमारा कामयाब होगा। ये वही जगह है जहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल आप मानू जिसको कहते हैं वो मौजूद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ये मेला भी साबका मेलों की तरह कामयाब रहेगा और कौमी कौंसिल अपने मकसद में कामयाब होगी। बहैसियत कौंसिल के डायरेक्टर आप आवाम को, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, कौमी कौंसिल की सरबराह की हैसियत से मैं उर्दू वालों से बस एक ही दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि जो उर्दू वाला जहाँ है वो एक गैर उर्दू वाले को उर्दू पढ़ा दे। ये अगर वो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना ले कि हम उर्दू जानते हैं, हम एक ऐसे आदमी को उर्दू सिखाएंगे कल से या आज से जिसकी ज़बान उर्दू नहीं है। अगर हम इस अहद के साथ आगे बढ़ जाएं तो साल, 2 साल, 4 साल में मंजरनामा बदल जाएगा। चूँकि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि गैर उर्दूदा हज़रात उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं,
لیکن ہماری طرف سے یہ کمی ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اگر ہم ان تک پہنچیں گے تو اس زبان میں اتنی طاقت ہے, اس زبان میں اتنی شیرینی ہے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنانے کا فن رکھتی ہے اور ہنر رکھتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, اردو دنیا کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی, اور جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ ہر سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے اردو دنیا کا یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. آداب. ہماری پیاری زبان اردو, ہمارے نغموں کی جان اردو, ہنسی دلکش جوان اردو, ہماری پیاری زبان اردو. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, نغمہ بار نظمیں, دلچسپ مضامین, مزیدار کارٹون, خوبصورت کامکس, قسطوار ناول, مہینے کی تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک, سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کہاں انہوں نے مایوس کیا, کہاں امیدوں کے چراغ جلائے, کہاں پیچھے گئے, کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان, اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان, اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر, بغیر کسی استاد کے, اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in